اس کی واقعی میں ایک کہانی ہے، سنو گی؟ جنت نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ ضرور، آنکھوں میں اشتیاق لیے کہا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس اسٹوڈیو کے دروازے میں رکا تھا۔ دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر مسز شیرازی کی آواز سنتے ہی رک گیا۔ ایک جادوگر شہزادے نے زخمی ہو کر اونچی لمبی دیواروں کے ایک مضبوط محل میں خود کو قید کر لیا۔ انہوں نے ہاتھ سے محل کی واحد روشن کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا بدن زخموں سے چور ہے، ہاتھ خون آلودہ ہیں، ہتھیار بھی ٹوٹ چکا ہے، کھورا بھی نہیں رہا۔ جنت دم سادھے انہیں بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ جادوگر شہزادے نے اپنی رہی سہی قوت مجتمع کی اور محل کی دیواروں کے ساتھ اگے خوبصورت پھول اور پودوں کو خطرناک کانٹے دار جھاڑیوں میں بدل دیا۔ رنگ برنگے پھول، نرم و ملائم گھاس اور سورج کی روشنیوں سے چمکتا سبزہ سب سیاہ ہو گیا۔ دیواروں سے وحشت ٹپکنے لگی۔ اونچا مضبوط محل ہر کسی کو خوفزدہ کرنے لگا۔ ادھ کھلے دروازے سے انہیں دیکھتا فارس اپنی جگہ منجمد کھڑا تھا۔ اب جب بھی کوئی خزانے کی تلاش میں محل کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو اپنے اندر زندگی کی لہر لیے وہ خون خوار جھاڑیاں دیوار بن کر اسے لہو لہان کر دیتی۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ لوگ محل سے دور بھاگنے لگے۔ جنت کی نگاہیں مسز شیرازی پر ٹھہری تھی اور مسز شیرازی کی نگاہیں پینٹنگ پر۔ وقت گزرنے لگا، دنیا بدلنے لگی، صدیاں بیت گئی، مگر محل کے اندر جادوگر شہزادے کے لیے اس کا وقت رکا رہا۔ اس کے زخم، اس کی اذیت، اس کا ہر غم اس کے لیے ٹھہرا رہا۔ شہزادے کو لگتا تھا یہ اس کی اس دنیا میں آنے کی سزا ہے یا پھر اس کی فتح کی جو اس نے اپنا سب ختم کر کے حاصل کی ہے۔ دروازے کے اس پار کھڑے فارس کی آنکھوں میں حزن کی ایک لہر اٹھی۔ سرخ ڈوروں میں قرب اترا، لب بھینچ رہے تھے، درد بڑھتا گیا۔ پھر جنت سامنے ہی فلور کشن پر بیٹھی انہیں مگن ہو کر سن رہی تھی۔ پھر یہ کہ ایک غریب یتیم لڑکی جو جادوگر خاندان سے نہیں تھی، کچھ وحشیوں سے بچتی بچاتی محل کی طرف آ نکلی۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس نے محل میں داخل ہونے کی ٹھانی، مگر چونکہ وہ جادو نہیں جانتی تھی اس لیے اس کا محل کے حدود میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ جس وقت وہ محل کی بیرونی دروازے پر وحشی درندوں میں گھری ہوئی تھی، اس وقت شہزادے نے حیران ہو کر اسے کھڑکی سے دیکھا۔ محل کے بیرونی دیوار سے اندر تک کا حصہ اپنا رنگ بدل رہا تھا۔ سیاہ گھاس ہری ہو رہی تھی، زمین سے پودے پھوٹ پڑے تھے۔ جس جگہ پر لڑکی کھڑی تھی اس جگہ اب کوئی کانٹے دار جھاڑیاں نہ تھی۔ دروازے پر جو جڑیں لپٹی ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹ کر راکھ ہو رہی تھی۔ دروازہ صاف ہوا تو لڑکی اندر آ گئی۔ وحشی درندے اس حد سے باہر رہے، اندر نہ آ سکے۔ روانی سے بولتے ہوئے انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ جادوگر شہزادے کے لیے وہ منظر کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ اس کا جادو اس لڑکی پر کسی طور اثر نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے زمین ہری ہو رہی تھی، پھول کھل رہے تھے، محل صدیوں سے تاریک رہا تھا، مگر اب لڑکی کے آتے ہی کرنیں بھی زمین پر اترنے لگی تھی۔ شہزادے کو لگا وہ لڑکی اس کے مضبوط حصار میں شگاف کر دے گی، جھاڑیاں روپ بدل لیں گی تو دیواریں کمزور ہو جائیں گی۔ دیواریں کمزور ہو گئی تو پھر وہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اذیت، غم اور سب ہی دکھ پھر سے آ جائیں گے۔ ماضی اپنا آپ دہرائے گا، پھر سے جنگ ہوگی، پھر سے فتح ہوگی اور پھر سے قید ملے گی۔ جادوگر شہزادہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ غصے اور انتقام کی آگ میں جھلستے ہوئے اس نے لڑکی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنت کی سانسیں رکی، تجسس کے ساتھ ساتھ خوف بھی بڑھ گیا۔ وہ جیسے ایک ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی ایک ماورائی کہانی میں مکمل غرق ہو چکی تھی۔ پہلے پہل اس نے کوشش کی لڑکی محل کے اندر داخل نہ ہو سکے، مگر چونکہ جادو کا اثر اس لڑکی پر نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ دروازوں پر چڑھی خطرناک بیلوں کو زیادہ دیر تک اس کے راستے میں حائل نہ کر سکا۔ لڑکی جب محل کے اندر داخل ہوئی تو اس کا اٹھایا جانے والا ہر قدم خوف کی تاریکی اور وحشت کے سناٹے کو مٹاتا گیا۔ کھڑکیوں کے کرنیں اندر آنے لگی۔ جو مخلوق تاریکی میں بسیرا کرتی تھی وہ روشنی میں فنا ہونے لگی۔ محل کی پوری 9 منزلیں تھی اور ہر منزل جادوئی سی اپنے اندر بہت سے راز لیے ہوئے تھی۔ لڑکی پہلی منزل پر 10 دن رہی، دوسری منزل پر بھی 10 دن،
तीसरी मंजिल पर भी 10 दिन। और उस दौरान उसे शहजादे की खुद नोट मिली, वो जो सदियों से लिखता आ रहा था। हर मंजिल पर उसे कुछ हिस्सा मिल जाता, जिसे पढ़ते हुए वो एक दिन अनदेखे वजूद की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। उसे अपने आसपास शहजादे की मौजूदगी का गुमान होने लगा था। वो उससे बातें करती, आवाजें भी देती, नगमे भी सुनाती, मगर कभी जवाब नहीं आता था। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, वो अक्सर ऊंची आवाज में कहती। मैं तुम्हें आजाद कर सकती हूँ, उसे यकीन दिलाती। तुम्हारे जख्म भर जाएंगे, तुम्हारा दर्द भी खत्म हो जाएगा, एक बार मेरे सामने आ जाओ। मगर शहजादा, जो उसे एक थ्रेट के तौर पर देखता था, उसके सामने कैसे आ सकता था? उसके लिए तो वो एक मुजरिम थी, सजा की मुस्तहक, जो उसकी इजाजत और मर्जी के बगैर उसके महल में घुस आई थी। 7वीं मंजिल पर पहुंचते ही लड़की को एहसास हुआ उसके पांव जख्मी होने लगे हैं। वो हड्डियों में दर्द महसूस करने लगी। 8वीं मंजिल पर उसकी जिल्द पर लकीरें उभरने लगी, जैसे छोटे छोटे कट लगते हैं वैसे ही। शहजादे को खुशी हुई कि लड़की की सलाहियत बिला आखिर खत्म होने लगी है। उसने अपने जादू का जोर मजीद बढ़ा दिया। 8वें से 9वीं मंजिल पर पहुंचने तक लड़की जख्मों से चूर और बुरी तरह से निढाल हो चुकी थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पहली और आखिरी बार इस कले के भूत से, यानी उस शहजादे से मिलना चाहती थी। उसने वो दरवाजा खोला जिसमें शहजादा बंद था, वक्त के दायरे में कैद, जख्मों से चूर, किसी बिफरे हुए शेर की तरह सर उठाए खड़ा था, हमला करने को मुकम्मल तैयार। लड़की के कदम रखने की देर थी। महल की बकिया तमाम मनाजिल की तरह इस मंजिल पर भी उसकी मौजूदगी का असर होने लगा। स्याही मिट गई, अंधेरा छट गया, रोशनी बिखर गई, मंजर साफ होने लगा। मगर यहाँ एक अनहोनी हुई। उसका असर सिर्फ महल के दरो दीवार को न हुआ, बल्कि शहजादे पर भी हुआ। वक्त की जंजीर टूट गई, शहजादे के जख्म भरने लगे, उसका दर्द खत्म हो गया, उसका जिस्म फिर से सही और सलामत हो गया, और लड़की बेजान होकर उसके कदमों में आ गिरी। आंटी नहीं, प्लीज, सैड एंडिंग नहीं, सैड एंडिंग बिल्कुल नहीं, फौरन ही दुखी होकर कहा। मगर मिसेस शेराजी इस कहानी की राइटर नहीं थी, वो उसकी एंडिंग नहीं बदल सकती थी। शहजादे को इस आखिरी लम्हे में एहसास हुआ कि अपना हसार मजबूत करने के लिए वो पिछले 90 दिनों से जिस लड़की को अजियतों से दो चार करता रहा है, वही लड़की उसके तमाम दर्द और अजियतें अपने वजूद में समेटकर अपनी आवाज का आदी बनाते हुए उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाकर खत्म हो चुकी है। वो चुप हो गई, जैसे कहानी बस यहीं तक थी। एक फसूसा बंधा हुआ था जो उनकी खामोशी से टूटा। फारिस कहानी के हसार से बाहर निकल आया। जालिम शहजादा 90 दिन तक उसकी मोहब्बत नहीं पहचान सका। गधा, जन्नत को गुस्सा चढ़ गया। वो दुखी, इख्तिताम पर बेइंतहा दुखी हुई बैठी थी। मिसेस शेराजी मुस्कुराई और बाहर दरवाजे के पास खड़ा फारिस मुस्कुरा ना सका। तुम्हें शहजादे की साइकोलॉजी भी समझनी चाहिए बेटा। मैं उसे क्या समझूं? आप ये देखिए, वो लड़की उसका दर्द चुनने आई थी आंटी, उसके लिए मरहम लाई थी, उसे बहुत दुख हो रहा था। मगर शहजादे को क्या पता, वो जो अपने साथ लाई है वो उसका मरहम है, उसके जख्मों के लिए है। उन्होंने नरमी से पूछा। उसे समझना चाहिए था कि लड़की के आने से फूल खिल रहे हैं, ये जिंदगी की इलामत है। वो अपनी बात पर डटी हुई थी। यही फूल उसके जादू का असर खत्म कर रहे थे, तो वो कैसे भरोसा करता? वो लाजवाब हो गई। मिसेस शेराजी ने नरमी से उसकी तरफ देखा। वो धीरे से मुस्कुराई। जो लोग बहुत ज्यादा हसास होते हैं और जिन्होंने बहुत दुख सहा होता है, वो अपने गिर्द ऐसे ही एक दीवार खड़ी कर लेते हैं बेटा, और तहैया कर लेते हैं कि अब जब भी किसी ने ये दीवार फलांगने की कोशिश की तो वो उसे तोड़ देंगे, मगर अपनी हदूद में हरगिज नहीं आने देंगे। उन्होंने महल की ऊंची मजबूत फसीलों की जानिब इशारा करके कहा। खुद को किसी भी मुमकिन अजिया से महफूज रखने के लिए वो ये हिफाजती इकदामात करते हैं, और अनजाने में इन लोगों को भी हर्ट कर देते हैं, जिनका वह मकसद इस दीवार को फैलाकर उनके दामन से सारे कांटे चुनना होता है। बात गहरी थी, उसके दिल को लगी। जब एहसास होता है तो उस वक्त काफी देर हो चुकी होती है।
रुक कर गहरी सांस ली, फिर उसकी जानिब देखा। जादूगर शहजादे जैसे लोग बुरे नहीं होते बेटा, वो इतनी बार टूट चुके होते हैं कि उन्हें जुड़ने से खौफ आता है, वो बस किसी पर एतबार नहीं कर पाते। बात मुकम्मल होकर खत्म हुई। उतरी हुई शक्ल के साथ उसने रुख मोड़कर पेंटिंग को देखा। गहरा समंदर, बुलंदियों में खड़ा एक शानदार स्याह महल, मजबूत दीवारें और खिड़की। जादूगर शहजादा खिड़की में खड़ा था, दूसरा दरवाजे में खड़ा था। लाइम जूस गिलास लबों से लगाए उसने दूसरे हाथ से अपना सेल फोन काउंटर टेबल से उठा लिया था। ओपन किचन से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए वो चौंक कर रुक गई थी। निगाहें मोबाइल स्क्रीन पर उबरते उस एक जुमले पर गिरकर रह गई जो पहले उसे एक मजाक के सिवा कुछ ना लगा था। लेकिन अगले ही पल सबूत के तौर पर अरसाल की गई स्नैप्स पर नजर पड़ते ही वो अपनी जगह पत्थर हो गई। गिलास उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरते ही झमाके से टूटा था। पहले उसका दिल रुका था, फिर सांसें भी थम सी गई थी। हैरत, सदमा, बेयकीनी, उसने बेइख्तियार दीवार का सहारा लिया। वुडन फ्लोर ने यकायक आग पकड़ी थी कि गर्दोनिमा की हर एक शय अंधेरा हुई। उसका तनफ्फुस फूल गया था, आंखों में वहशत उतर आई थी। अगले ही लम्हे उसने हाँफते कांपते शदीद गुस्से के आलम में अपना सेल फोन सामने दीवार पर दे मारा था। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों की परवाह किए बिना धप धप कदम उठाती अपने लग्जरी बेडरूम में बंद हो गई। पेशानी मसलते, निचला लब काटते, बालों को नोचते वो कमरे में मतवहश सी टहल रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था, यकीन आ भी नहीं सकता था। उसने पर्दे हटाकर खिड़कियां खोल दी। उससे कोई अफाका ना हुआ तो दरवाजा स्लाइड करके बालकनी में आ गई, मगर अंदर की आग हनूज जलती, भड़कती, लपकती रही। तनफ्फुस भारी रहा, वहशत अंग अंग में समा गई। रेलिंग पर हाथ जमाए अब वो गहरी सांस ले रही थी। कमरे से बाहर राहदारी से आगे लाउंज के सामने फर्श पर गिरा उसका सेल फोन एक बार फिर जगमगा रहा था। कांच के टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे थे। जूस लकीरों में फैलता हुआ 2 इंच के फर्श से नीचे दूर तक फैल चुका था और वो बाहर देख रही थी, अंधेरों में, वहां जहां सब रेजा रेजा हो रहा था। वो ऑफिस रूम में अपना कुछ काम निपटा कर पानी पीने की गर्ज से किचन में आया तो मिसेस शेराजी लाउंज से सीधा वहीं आ गई थी। काम हो गया? प्यार से पूछा। अभी बाकी है, आप पानी पिएंगी? वो फ्रिज से पानी की बोतल निकाले काउंटर टेबल की तरफ आ गया। उन्होंने मना कर दिया। जल्दी सो जाया करो बेटा, इस तरह रात गए तक जागना सेहत के लिए ठीक नहीं। संजीदगी से ताकीद की। पहले काम ज्यादा था लेकिन अब कोशिश करूंगा जल्दी सो जाऊं, कहकर पानी का गिलास लबों से लगाया। जन्नत तुम्हारे साथ अब कैसी है? आंखों में मुस्कुराहट लिए मध्यम आवाज में पूछा। ठीक है, कल से एक शहजादे को गधा कह रही थी। वो बेसाख्ता हंस पड़ी, खाली गिलास मेज पर रख कर उनके पास आ गया। आप मेरी कोई बात भूलती नहीं है? मिसेस शेराजी व्हील चेयर पर थी, वो उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया था। माएं भला अपने बच्चों की छोटी छोटी बातें, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात भी भूलती हैं? उसका चेहरा अपने हाथों में भर कर बोली। तब मैं बच्चा नहीं था, मेरे लिए तो तुम आज भी बच्चे हो। उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख सकता था। जब आप मुझे छोड़कर गई थी मैं तब ही बड़ा हो गया था मम्मी। उनके अंदर एकदम से सन्नाटा फैला, आंखों में नमी तैर गई। फारिस उनके हाथ अपने हाथों में लिए रहा, फिर नरमी से अपने लबों से लगाया। वो कुछ दुख, कुछ अजियत से उसे देखती रही। तुम लंदन में अपने घर गए थे? वो पूछ नहीं रही थी, ना ही बता रही थी। वो बस उसके अंदर की बेसुकूनी तक पहुंचना चाह रही थी। वो सर झुकाए बिल्कुल खामोश रहा। कब्रिस्तान घर नहीं हुआ करते। वो अपनी मुर्दा ख्वाब और ख्वाहिशात का पीछे रह जाने वाली सामान उठा लाया था। उसकी खामोशी उन्हें अजियत से दो चार करने लगी। मुझे माफ कर दो, उनकी आवाज बेइख्तियार भीगी। फारिस ने तड़प कर सर उठाया था। ऐसे मत कहा करें प्लीज। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और लब कपकपा रहे थे। मम्मी प्लीज। वो एकदम से बेचैन हुआ था। उनके हाथ मजबूती से थामे उनके कदमों में ही बैठ गया। मैंने आपको कभी भी किसी मामले में कसूरवार नहीं ठहराया, लेकिन मैं तो ठहराती हूँ। मेरे सीने पर बोझ है। जाने वाले तो चले गए, जो पीछे रह गए हैं मैं उन्हें एक नहीं कर पाई। मैं तुम्हें और रायान को अभी तक एक नहीं कर पाई।
वो सिसक पड़ी। उनके हाथों पर फारिस की गिरफ्त एकदम से ढीली पड़ी थी। वो फर्श पर था। वो जमीन में उतर गया। अजियत अंग अंग में समा गई। वो छोटा सा मासूम बच्चा है। उसका उन सब मामलात में कोई कसूर नहीं। उसे खुद से दूर ना करो प्लीज बेटा, उसे सजा मत दो। वो पीछे हुआ था, सर झुकाए, खामोश, साकत। बस उस मुकाम पर आकर उसकी सारी हिम्मत बर्दाश्त खत्म हो जाती थी। मजीद कुछ सुनने की ताब नहीं रहती थी। कदमों की आहट के साथ ही जन्नत राहदारी से नमूदार हुई। आंटी, आप यहाँ हैं और मैं आपको स्टूडियो में ढूंढ रही थी। साकत फिजा में अरताश पैदा हुआ। मिसेस शेराजी ने फौरन से आंसू साफ किए। फारिस उठकर वहां से चला गया। सर झुका हुआ था और वो देख नहीं सकी, मगर उसकी आंखें, उसने गर्दन मोड़कर उसे सीढ़ियों की तरफ जाता देखा। फिर मिसेस शेराजी के पास आई। उनका रुख दूसरी तरफ था, तो वो तब तक खुद को कंपोज कर चुकी थी, मगर उनकी आंखें अभी भी लाल हो रही थी। जी बेटा, वो बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी, मगर उनके चेहरे से उदासी झलक रही थी। वो निचला लब काट कर रह गई। जाने फारिस के साथ उनकी क्या बात हुई थी। वो भी तो चुपचाप ऊपर चला गया था। मैंने सोचा सोने से पहले आपसे बातें कर लूं, मगर आप कमरे में ही नहीं थी। हाँ, बस फारिस के पास आई थी। चलो कमरे में चलते हैं, लहजे को हत्तुल इम्कान नॉर्मल करते हुए बोली। उनके हमरा राहदारी की तरफ जाते हुए उसने सीढ़ियों की तरफ ऊपर देखा था। ऊपरी मंजिल की तमाम बत्तियां गुल थी। हर तरफ अंधेरा सा फैला हुआ नजर आ रहा था। कुछ वक्त मिसेस शेराजी के साथ गुजारने के बाद वो अपने कमरे में आ गई और वो दरवाजा बंद करके सीधा खिड़की में जा खड़ी हुई। सामने ही वसीओ अरीज लॉन का गोशा और बाएं तरफ ग्लास बॉल्स के अहाते में स्विमिंग पूल नजर आ रहा था। नेलगू बल्ब रोशन थे। शेड तले मखसूस कुर्सियों और काउच के इतराफ में जरका रोशनी सी फैली थी। अपने कमरे की खिड़की से नजर आता ये मंजर उसे बहुत भला लगता था। वो अपने ख्यालों में गुम खड़ी थी कि उसे ट्राउजर और सफेद शर्ट जेब तन किए फारिस वजदान ग्लास डोर धकेल कर उसी की तरफ आता हुआ नजर आया। वो यकायक पर्दे की ओट में हो गई। फिर सर निकाल कर झांका। ट्रे में सबस चाय और चंद एक लवाजमात रखे। मुलाजमा उसके पीछे थी। वो काउच पर बैठ गया। मोबाइल हाथ में था। लैपटॉप और कुछ जरूरी फाइल्स शीशे की मेज पर पहले से धरी थी। वह अब उसे देख रही थी और बहुत गौर से देख रही थी। सब्ज चाय का कप हाथ में लिए वो बिल्कुल खामोश बैठा था। निगाहें स्विमिंग पूल पर जमी हुई थी। एक ही मुकाम, एक ही नक्शे पर साकत सी ठहरी हुई। वो चंद लम्हों तक अपनी जगह खड़ी रही। फिर उसने मोबाइल पर मैसेज टाइप किया। क्या तुम्हें इनविटेशन मिला? निगाहें उस पर जा ठहरी थी। तवक्का के ऐन मुताबिक नोटिफिकेशन मिलते ही अपना मोबाइल उठा लिया था। सोफे के साथ कमर टकाए अब वो उसे टाइपिंग करता हुआ देख सकती थी। कैसा नोटिफिकेशन? मेरी और जैद की मंगनी का। लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट और आंखों में रोशनी लिए जवाब लिखा और फिर सर उठाकर उसके तासुरात देखना चाहे। वो जबरे भींचकर स्क्रीन को तक रहा था। उसे बड़ी खुशी हुई। मंगनी? आर यू सीरियस? हाँ, भला मैं क्यों मजाक करूंगी। साथ ही वो इनविटेशन कार्ड फॉरवर्ड कर दिया जो जैद की मम्मी ने उसे भेजा था। 4 दिन बाद उस टिड्डे की सालगिरह थी और साथ ही अंगूठी पहनाने की रस्म भी सर अंजाम पाना थी। वो मुंतजिर रही अब वो क्या कहता है, मगर वो पेशानी पर बल डाले मोबाइल पर नजरें जमाए बैठा रहा। क्या तुम आओगे? क्या मुझे आना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, किस हैसियत से? मेरे शोहर की हैसियत से। लिखते लिखते रुक गई। मैसेज मिटा दिया। दोबारा लिखा। तुम्हारे उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं। दूसरी तरफ खामोशी। मैं इंतजार करूं? नहीं। उसके इनकार से हिज उठाते हुए फौरन लिखा। हालांकि आना चाहिए। अच्छा, तो वो किस लिए? क्योंकि मैं कह रही हूँ। धड़कते दिल के साथ टाइप कर दिया। उसके जवाब ने जैसे एक लम्हे के लिए फारिस को भी हैरान किया था। निचला लब काटते हुए फौरन से मैसेज डिलीट कर दिया। खिड़की से पीछे हट गई। अब वो नहीं जानती थी फारिस क्या कर रहा था, मगर दोबारा उसकी तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आया था। कुछ देर तक कमरे में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं चक्कर काटने के बाद वो फिर से खिड़की के पास आ गई। वो लैपटॉप गोद में रखे अपना काम कर रहा था।
لیکن ہر چند لمحوں کے بعد اس کی نگاہیں سکرین سے ہٹ کر سوئمنگ پول اور پھر وہاں سے بیلوں سے گھری دیوار تک اٹھ جاتی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی رہی اور اسے دیکھتی رہی۔ یکا یک اسے موبائل پر میسج موصول ہوا۔ سر جھکا کر سکرین پر نگاہ دوڑائی۔ اگر تم اسی طرح کھڑکی سے مجھے تارتی رہو گی تو میں کام نہیں کر سکوں گا۔ اللہ! وہ پردہ چھوڑ کر جھٹکے سے پیچھے ہٹی، نچلا لب دانتوں میں دیا، حالانکہ وہ چھپ کر کھڑی تھی۔ خوش فہمی دیکھو جناب کی۔ گھبراہٹ پر قابو پا کر تیزی سے ٹائپ کیا۔ میں بھلا تمہیں کیوں تارنے لگی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تم کہاں ہو۔ رک کر مزید لکھا۔ میں تو اپنا کام کر رہی ہوں۔ آگے سے شیطانی مسکراہٹ موصول ہوئی۔ وہ تپ گئی۔ پورے گھر میں تمہیں بس میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے آ کر بیٹھنا تھا۔ بھنا کر لکھ دیا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی تم مجھے دیکھ نہیں رہی، کہا۔ وہ فنا سی ہو گئی۔ اپنا موبائل آف کر کے خود سے بہت پرے رکھ دیا۔ کھڑکیوں سے دور ہو کر شرافت سے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اسے میسج ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، بھویں سکیر کر خود کو کوسا، اور نہ ہی اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کمرے میں جانا چاہیے تھا۔ ذرا سی توجہ کیا دی، موصوف تو 7ویں آسمان پر پہنچ گئے ہیں۔ کچھ دیر تک بیٹھی رہی، پھر موبائل اٹھا لیا، یوٹیوب پر چند ایک ویڈیوز دیکھی، بچوں کے نام سرچ کیے، ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے کھڑکیوں کی طرف اور پھر وارڈروب کی طرف دیکھنے لگی۔ ذہن کچھ نہ کچھ ترتیب دینے میں لگا ہوا تھا۔ کپڑے یہاں رکھے جا سکتے تھے اور بیبی کارٹ اس مقام پر، ڈریسنگ یہاں سے ہٹا کر وہاں رکھ دے گی۔ ذہن میں ہر طرح کی ترتیب دے کر تکیہ درست کرتی لیٹ گئی۔ موبائل ہاتھ میں تھا، وہ سدرا سے بات کر رہی تھی۔ ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ کوہنی کے بل اوپر ہوئی تو دروازے میں فارس تھا۔ اندر آ سکتا ہوں؟ وہ پورے کا پورا اندر تھا اور اجازت مانگ رہا تھا۔ اس کا میسج یاد آیا تو آنکھوں میں خفگی ابھر آئی۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ میں نے سوچا تم سے باتیں کر لوں۔ تم بھی تو جاگ رہی ہو۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر برابر میں آ بیٹھا، حالانکہ میں نے اجازت نہیں دی تھی، گھور کر کہا۔ انکار بھی تو نہیں کیا۔ وہ مسکرایا۔ جنت بربرا کا رخ بدل گئی۔ موبائل ہاتھوں میں لیے عجلت میں ٹائپنگ کرنے لگی۔ سدرا سے بات کر رہی تھی تو گفتگو سمیٹنے لگی۔ فارس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے سفید کاٹن نائٹ ڈریس کی آدھی آستین سے جھانکتے بازو پر منمل زخم کی لکیر واضح تھی۔ تمہیں یہ زخم کیسے آیا؟ کون سا زخم؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا۔ اگلے ہی پل اپنے بازو کے اسی مقام پر اسے لمس کا احساس ہوا۔ اب پوچھ رہے ہو؟ اب تو زخم بھی بھر گیا۔ منظر، وقت، لمحے یاد آئے تو کہے بنا نہ رہ سکی۔ نشان تو ابھی بھی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ 2 سٹیچز لگے تھے، اسے یاد تھا۔ بوا کے گھر بلب فکس کر کے نیچے اتر رہی تھی، تب کیل لگ گئی۔ بہت عام سے لہجے میں جواب دے کر بادام منہ میں ڈالا۔ پارکنگ ایریا کا منظر، برہان واصف کا تھپڑ، سخت پتھریلی زمین پر گرتے ہی ہتھیلیوں پر پڑنے والی رگڑ، بے اعتنائی کی اذیت، وہ خوف، وہ برداشت، اس نے وہ تمام کے تمام خیالات جھٹک دیے۔ 2 سٹیچز لگے تھے، اسے یاد تھا۔ بوا کے گھر بلب فکس کر کے نیچے اتر رہی تھی، تب کیل لگ گئی تھی۔ بہت عام سے لہجے میں جواب دے کر بادام منہ میں ڈالا۔ پارکنگ ایریا کا منظر، برہان واصف کا تھپڑ، سخت پتھریلی زمین پر گرتے ہی ہتھیلیوں پر پڑنے والی رگڑ، بے اعتنائی کی اذیت، وہ خوف، وہ وحشت، اس نے وہ تمام کے تمام خیالات جھٹک دیے۔ وہ چند لمحوں تک منتظر رہا کہ وہ مزید کچھ کہے گی، مگر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ ایسا ہی ایک زخم مجھے بھی لگا تھا، تب میں 5 سال کا تھا۔ کیسے؟ کشن کو سینے سے لگائے اس کی طرف رخ موڑا۔ میں الماری میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس لیے؟ وہ ذرا سا حیران ہوئی تھی۔ تم گیس کرو کس لیے؟ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ کسی بچے کا سر پھاڑا ہوگا، کوئی نقصان کیا ہوگا، یا پھر فارس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ خود ہی تو کہا ہے گیس کرو، جنت نے بھویں سکیری۔ گیس کرو یہ نہیں کہا، الزام لگاؤ۔ وہ اچھا خاصا برا مان گیا۔ میں تو یہی گیس کر سکتی ہوں، اس نے گھورا۔ اب کوئی بچہ اچھا کام سر انجام دے کر تو چھپنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر میں اس لیے نہیں چھپ رہا تھا، میں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا۔ تو پھر؟ فارس نے کچھ بتانے کے لیے منہ کھولا، پھر رک گیا۔ فارگیٹ اباؤٹ اٹ۔
सर झटक कर मोबाइल उठा लिया। क्या मतलब फॉरगेट अबाउट इट? उसे गुस्सा चढ़ गया। खुद ही बात शुरू करो, सस्पेंस फैलाओ और फिर सो जाओ। गुस्सा तो उसे वैसे भी चढ़ा रहता था। फारस की उस हरकत पर सीख पा हो गई, मगर दूसरी तरफ तो जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। मोबाइल पर यूं निगाहें मरकूज थी जैसे कोई जरूरी काम दरपेश हो। असल में मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं तुमसे बातें करने लग गई। कंफर्टर एक तरफ करके उठ गई। कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या? दरवाजा खोलकर और पूरी कुव्वत से बंद करके बाहर थी। वो गहरी सांस लेकर तेजी से उठकर उसके पीछे आया। राहदारी से सीधा किचन में गया। सामने ही वो कुर्सी पर बैठी थी। सर झुका हुआ था, गूंदे हुए बाल पुश्त पर थे। बुरबुराहट जारी थी। जब दिल चाहेगा बातें करेगा और जब दिल चाहेगा खामोश हो जाएगा। मैं कोई मजाक हूँ? उसे नहीं पता था वो ऐन उसके पीछे खड़ा था। मुस्कुराहट दबाए उसके बराबर में कुर्सी खींच कर बैठ गया। अच्छा करो, क्या बातें करनी है? मैंने कब कहा मुझे तुमसे कोई बात करनी है? उसे पतंगे लग गए। ये तो तुम हो जो ख्वामखा फ्री होने की कोशिश करते हो। फ्री होने की कोशिश? वो मुस्कुराहट दबाते हुए बंद मुट्ठी पर थोड़ी टकाए उसे नरमी से देखे गया। आइंदा मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, कोई जवाब नहीं दूंगी। साफ कह दिया, जैसे तुम करते हो मैं भी बिल्कुल वैसे ही करूंगी। मैं खौफजदा था इसलिए छुप गया था, उसने अचानक कहा। और वो जो शदीद गुस्से में मजीद कुछ कहने का इरादा रखती थी, यकदम चुप हो गई। बस या और कुछ? उसने बज़ाहिर दोस्ताना लहजे में पूछा। वो चंद लम्हों तक उसकी आंखों में देखती रही। जाने कितनी हकायतें थी जो इन आंखों में छुपी हुई थी। यानी मैं कोई और सवाल भी पूछ सकती हूँ? तस्दीक चाहिए। हाँ। वो हैरान हुई और तवक्का के बरअक्स जवाब मुस्बत मिला था। फायदा? जब तुम जवाब ही नहीं देते। तनफ्फर से सर झटका। खुद सारे सवाल पूछ लेते हो, सारे जवाब सुन लेते हो, लेकिन जब मैं कुछ पूछूं तो खामोशी। वो अभी भी गुस्से में लग रही थी। बंधे हुए बाल आगे की तरफ दाहिने कंधे पर थे। कुछ लिटें ढीली होकर गाल पर फिसल रही थी। चाय पियोगी? उसने उठकर कैबिनेट से जार निकाला। वो लब भींचे एक सख्त नजर उस पर डाले अपनी अंगूठी को आगे पीछे करती रही। चाय बनाते हुए वो खुद से हल्की फुल्की गुफ्तगू करता रहा, मगर उसने लब सिए रखे जैसे अब कोई बात ही नहीं करेगी। चाय तैयार हो गई तो भाप उड़ाता एक मग उसने आगे रखा और दूसरा मग हाथ में लिए सामने खड़ा रहा। तुम्हें गलत लगा था, घूंट भर कर कहा। क्या? उसने अपना मग करीब कर लिया। यही कि मैं किसी औरत को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाह रहा हूँ। जन्नत की धड़कन लम्हे भर के लिए थी। सांस रुक गया। मग पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी। उस रात के बाद अदीना जुबैर का जिक्र जैसे आज हुआ था। वो उसका नाम नहीं ले रहा था, ना ही उसे किसी साबका रिश्ते से जोड़ रहा था। उसके लिए वो एक औरत थी। और तुम चाहते हो मैं यकीन कर लूं? उसका लहजा मजबूत था, मगर दिल शिद्दत से धड़के जा रहा था। फारस की साबका बीवी का खौफ जैसे उसकी रग रग में समाया हुआ था। खसूसन ये इंकशाफ ज्यादा तकलीफ दे था कि अदीना उसकी मोहब्बत थी और वो उसे हर सूरत अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। करना तो चाहिए। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। तुम मुझे तलाक देना चाहते थे? आंखों में आंखें डालकर याद दिलाया। देना चाहता था, ये तुमने खुद कह दिया था। पास्ट टेंस, माय डियर वाइफ। फेल माजी। मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रही। जन्नत हक्का बक्का सी उसे देख रही थी। जरा देखो तो, खड़ूस को सारी बातें याद थी उसकी, और जाहिर ऐसे करता था जैसे कोई कुछ सुन ही नहीं रहा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई औरत नहीं है, उसने चाय का घूंट लेते हुए कह दिया। बात सादा, मुख्तसर और वाज़िया थी। जन्नत की धड़कनें थमी रही, सांसें रुकी। अगले कई लम्हों तक वो उसे खामोश निगाहों से तकती रही। क्या वो दानिस्ता अदीना जुबैर का जिक्र नहीं कर रहा? और अगर किसी औरत का मसला नहीं था तो वो उसे तलाक क्यों देना चाहता था? कुछ तो था जो छुपा हुआ था, या फिर वो जानबूझकर उससे छुपा रहा था। तुम मुझसे नफरत करते थे और मुझे तलाक देना चाहते थे, और फिर अचानक तुम आकर कहो कि मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, तो मैं इस बात को क्या समझूं? हाँ, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है, किसी को अचानक एक सेकंड में मोहब्बत हो जाए। और मैंने कब कहा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई? मेज पर कोहनियां जमा कर उसकी आंखों में झांका। वो जो अपनी धुन में बोल रही थी साकत हो गई। सवाल ठा करके दिल को लगा। साफ साफ बेइज्जती।
चेहरा खुफत से सुर्ख हुआ। अब ना वो उठ सकती थी, ना रुख बदल सकती थी, ना गायब हो सकती थी। हाँ, फारिस ने कब कहा उसे मोहब्बत हो गई? मेरा मतलब है, मैं कह रही थी, असल में वो। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। चेहरा मुतबस्सम हो गया, आंखों में शरारत उतर आई। असल में मेरा दिमाग खराब है, जो मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। उसकी चाल समझते ही कुर्सी धकेल कर उठ गई। चाय तो पी लो, जहर दे दो तुम मुझे। मुड़कर चलाई, फिर बेडरूम में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो मेज पर बैठा मजे से चाय पीता रहा। समझता क्या है खुद को? बिगड़े तेवरों के साथ लिहाफ ओढ़ कर लेट गई, आंखों पर बाजू रख लिया, फिर जंजला कर करवट बदली, दोबारा बदली, कुशन अपने कान पर रखा। फारिस भाई ने कभी तुमसे मोहब्बत का एतराफ किया? दूसरे कान में आवाज गूंजी, मोहब्बत अमाल से झलकती हो तो एतराफ की जरूरत नहीं पड़ती। तखय्युल की धार पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आया। उसके अल्फाज, उसका जुमला, उसका जवाब। उसने तकिए में सर्द तपे हुए आंखें मींच ली, अंदर ही अंदर बहुत सारा चीखी। कैसा इंसान था वो? मोहब्बत का एतराफ हुआ नहीं था और वो अपनी जुबान से तस्लीम कर बैठी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो तकरीबन रो देने वाली थी। फारिस ने दरवाजा खोला, खनकार कर गला साफ किया। उसने कुशन उठाकर उसे दे मारा। खबरदार, जो तुमने मुझसे कुछ कहा तो। वो तकरीबन रो देने वाली थी। वो मुस्कुराहट जब्त किए सोफे पर जा बैठा। हाँ ठीक है, मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन ये भी तो नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो मोहब्बत पर कोई बात ही नहीं की। टांग पर टांग जमाए, दाहिने पांव को जुम्बश देते, सोफे के हथों पर बाजू टकाए, वो जैसे किसी सल्तनत का शहजादा बना बैठा था। वो कंफर्टर में दुबकी पड़ी रही। अब कोई जवाब देती तो फंस जाती, ना जवाब देकर फंसना ज्यादा मुनासिब लगा। मेरा ऐसा भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, उसने कहा। जन्नत कमाल, फिर पुकारा। वो तो ऐसे हो गई जैसे अपने कान कहीं गिरवी रख आई हो। वो जेरे लब मुस्कुराते हुए उठकर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो जन्नत ने धीरे से आंखें खोल दी। आइंदा मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। मौसम इरादा कर लिया, किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी, कमजोर नहीं पड़ूंगी, कोई शिकवा भी नहीं करूंगी। समझता है मुझे फंसा लेगा? तकिए में सर देकर बुरी तरह झंझलाई। तसल्ली और तशबी से हिम्मत बंधाने और इरादे बांधने से कुछ नहीं हो रहा था। फारिस का लहजा, उसकी मुस्कुराती निगाहें, उसका इस्तेहकाक से सवाल पूछना। वो अपनी धड़कनों को सुन रही थी और एहसासात में उलझ रही थी। और बाहर लॉन पूल्स की रोशनियों में फारिस वजदान रात गए तक टहलता रहा था। नींद से बेदार होते ही उसने कमरे की तमाम खिड़कियां खोल दी थी। बाहर का नजारा करते हुए अंगड़ाई ली, फिर कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गई। शावर लिया, कपड़े बदले, बाल खुश्क करके पोनी बनाई, दुपट्टा लिया और निखरी सी बाहर आ गई। किचन में मामूल की तरह नाश्ते का इंतजाम हो रहा था। मिसेस शहराजी केयर टेकर के हमरा लाउंज में बैठी कुरान पढ़ रही थी। वो पहले उनके पास गई। उनसे मिलने के बाद किचन में जाकर नाश्ते के इंतजामात का जायजा लिया। निगाहें फिर भटकती हुई सीढ़ियों की तरफ गई। कलाई मोड़कर वक्त देखा, 7:30 बज रहे थे और वो अभी तक नीचे नहीं आया था। कहीं उसकी वो दुआ कबूल तो नहीं हो गई कि सुबह 7 बजे से पहले पहले उसे ऑफिस जाना पड़ जाए। निचला लब दांतों तले दबाया और फिर खुद को हर लिहाज से कंपोज करती सीढ़ियां चढ़ने लगी। कह दूंगी आंटी ने भेजा है, जाओ देखो मेरा बेटा अभी तक नीचे क्यों नहीं आया। आहिस्तगी से दस्तक देकर बेडरूम का दरवाजा खोला, मगर अंदर कोई ना था। बेड पर कोई शिकन ना थी, तकिए भी तरतीब से रखे थे, कंफर्टर भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। रुक कर राहदारी में निगाह दोहराई, सिटिंग एरिया में भी कोई नहीं था। उसके कदम बेइख्तियार स्टडी रूम की तरफ उठे। अध खुले दरवाजे को आहिस्तगी से अंदर धकेला तो उसे सामने ही काउच पर सोया हुआ दिखाई दिया। लम्हे भर के लिए तो जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। दरवाजे के हैंडल पर गिरफ्त जमाए कितनी ही देर तक खड़ी रह गई। लैपटॉप, मोबाइल, कुछ फाइल्स और कागजात कलीन और शीशे की मेज पर धरे थे। पानी का गिलास भी रखा था, कॉफी का खाली मग भी। क्या वो सारी रात स्टडी रूम में सोया रहा? वो कुछ देर तक अपनी जगह खड़ी रही। करीब आकर उसे देखा, फिर आवाज देते हुए कंधा हिलाया तो उसकी आंख खुल गई। खिड़कियों से धूप सीधा चेहरे पर पड़ रही थी।
तो मुंदी मुंदी आंखों के साथ उठकर बैठ गया। हवास बेदार हुए तो स्टडी में अपनी मौजूदगी का एहसास करके सीधा हुआ। तासुरात एकदम से बदले। गालबन उसे तवक्का नहीं थी वो ऊपर आएगी। तुम? उसकी आंखें रुत जगह की गवाही दे रही थी। हाँ, वो तुम नीचे नहीं आए तो आंटी ने भेजा। वो हथेलियों पर सर गिराए कुछ देर तक बैठा रहा। तुम यहीं सोए रहे? काम करते आंख लग गई। वो दाहिने हाथ से पेशानी मसल रहा था। आंखें हनूज बंद थी। 2 दिन पहले जब वो ऑफिस में सो गया था तो उसने तब भी मिसेस शेराजी को यही जवाब दिया था। वो निचला लब दांतों में दबाए खड़ी रही, फिर गिलास में पानी डालकर उसे दिया। तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसने कहा। वो सर हिलाकर स्टडी रूम से चली गई। नाश्ते के दौरान उसका रवैया ठीक रहा, वर्कआउट करवाते हुए भी। बस फर्क ये था वो आज उसे कम डांट रहा था, ज्यादा बात भी नहीं कर रहा था। जहन कुछ उलझा हुआ सा लगा। जब वो बात कर लेती तो वो चौंक कर पूछता वो क्या कह रही थी। ऑफिस के लिए रवाना हुआ तो वो ग्लास वॉल्स के सामने आ खड़ी हुई और काफी देर तक खड़ी ही रही। ऑफिस से वापसी पर अपने कमरे में दाखिल होते ही उसे गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। हालांकि कुछ भी तो ना बदला था। टाई की नोट ढीली करते हुए उसने सोफे पर बैठकर जूते उतारे, कफलिंग्स और घड़ी ड्रेसिंग टेबल पर रखी तो अदराक हुआ उसके परफ्यूम्स और लोशंस वगैरह गायब थे। सोच में उलझते वार्डरोब स्लाइड की तो खाली मिली। उसके कपड़े, जूते, टाइयां कुछ भी मौजूद नहीं था। वो एकदम से हैरान हुआ। जहन में एक मुमकिना ख्याल ने सर उठाया तो उसका सर नफी में हिला, मगर अगले ही पल वो जूते पहनकर सीढ़ियां उतरने नीचे आ गया। किचन में दोपहर के खाने का इंतजाम हो रहा था। मिसेस शेराजी लाउंज में बैठी थी। मुलाजमा उनके लिए कप लिए चाय डाल रही थी। जन्नत की तलाश में निगाह दोहराते हुए उसने राहदारी का रुख किया था। कुछ ही देर में वो दरवाजे पर दस्तक देता उसके कमरे में दाखिल हो चुका था। उसका सारे का सारा सामान कारपेट पर धरा था और वो बिल्कुल सामने नीचे बैठी उसके जूते तरतीब से रख रही थी और इतना मगन होकर काम कर रही थी कि ना दस्तक सुनाई दी थी ना उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। सीने पर बाजू बांधे वो खुशगवार हैरत से उसे देखता रह गया, फिर उसके अकब में बेहद करीब पंजों के बल बैठ गया। मैं अभी अदील को कॉल करने वाला था, मेरे कमरे से कुछ सामान चोरी हो गया है। इतने करीब से इतने अचानक आवाज आने पर वो एकदम से बौखलाई। स्नैकर्स छूट कर नीचे गिरे। तुम कब आए? घबरा कर पूछा। काफी देर हो चुकी है, वो उसकी आंखों में देख कर बोला। तुम इतनी बिजी थी तुम्हें पता ही नहीं चला। जन्नत हवास बाख्ता से उसे देख कर रह गई। एक तायराना निगाह कमरे में दोहराई, फिर फुर्सत से उसे देखा। आंखों में शरारत और लबों पर जो मुस्कुराहट थी वो उसे लब भींच कर दबा रहा था। क्या बताना पसंद करेंगी? मेरे जूते, कपड़े, टाइयां खुद चलकर नीचे आई हैं या आप उन्हें लाई हैं? जन्नत की हवाइयां उड़ी हुई थी। सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क हो गया था। उसने सोचा था वो अपने बेडरूम में उसका सामान सेट करने के बाद मैसेज करके बता देगी कि अब वो कमरा शेयर कर सकता है, लेकिन शौमई किस्मत कि वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था और अब उसे यूं देख रहा था जैसे वो कोई जुर्म करती रंगे हाथों पकड़ी गई हो। अगर आप लाई हैं तो फिर क्यों लाई हैं? लहजे में किस कदर मासूमियत थी, जैसे वो जानता ही ना हो वो क्यों लाई थी। मैं जहन खाली हो गया, ना लफ्ज रहे ना जुमले बने और वो उसकी कैफियत से हिज उठाता उसके बराबर में ही बैठ गया कि जवाब देने के लिए जितना वक्त दरकार है ले लो, मुझे भी यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं। जन्नत को जी भर कर रोना आया। खुद को जिस सिचुएशन में फंसा लिया था उसका आसान तरीन हाल भी उसे बेइंतहा मुश्किल लग रहा था। हाँ, तुम क्या? मैं अपना रूम शेयर करने की इजाजत दे रही हूँ तुम्हें। फारिस भूमें उचकाई। लेकिन मैंने तुमसे इजाजत कब मांगी? और जन्नत को लगा जैसे आसपास बहुत से धमाके हुए हों और आंखों के सामने उस इज्जत अफजाई पर तारे से चमक उठे हों। उस दिन तो बड़ा कह रहे थे कि कमरे में दिल नहीं लग रहा। सारी मुरव्वत लिहाज बलाए ताक रखते हुए वो उस पर फट पड़ी। मैंने ये कब कहा? वो कदरे हैरत से सीधा हुआ। दिल में जगह नहीं दे सकती तो कमरे में दे दो, सुलग कर याद दिलाया। चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकता। बेयकीनी की इंतहा, झूठा। जन्नत ने गोद में जो कोट रखा था उसे उठाकर कालीन पर पटका। ज़ूफिशा, ज़ूफिशा,
उठकर मुलाजिमा को आवाज दी। मुलाजिमा तो फौरन ही हाजिर हुई। ये सारा सामान अभी की अभी साहिब के कमरे में पहुंचाओ, झट से हुक्म सादर किया। मगर मुलाजिमा फारिस की थी। उसके एक ही इशारे पर जन्नत के हुक्म को मुकम्मल नजरअंदाज करती कमरे से चली गई। जन्नत का पारा मजीद चढ़ गया। मुड़कर उसे देखा। अब तुम जाओ यहाँ से, सख्त लहजे में उसे हुक्म सादर किया। आंखों में हल्की सी नमी, भौहें सुकड़ी और लब भींचे हुए। वो चंद लम्हों तक खड़ा रहा। अगले ही पल अपने और उसके माबैन फासले को खत्म करते हुए खुद से लगा लिया। वो उसकी इस हरकत पर अपनी जगह थम गई। थैंक यू सो मच, मुझे इजाजत देने के लिए। आवाज मध्यम और गहरी थी। जन्नत का गुस्सा यकायक ठंडा हुआ। तासुरात में नरमी उतर आई। अलग होकर उसने दोनों हाथों से बालों को पीछे किया। अगर मुझे पता होता आज मुझे सरप्राइज मिलने वाला है तो मैं शायद बहुत देर से घर आता। उसके कंधों पर हाथ रखे कह रहा था। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। अपनी खुफत पर छुपाने को धरने से कह दिया। वो हंस दिया। ऑफ कोर्स मैं ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा। वो उसे नजरअंदाज करती कहीं और देखने लगी। मुझे चेंज करना है, फारिस ने कहा। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाल कर उसे दिए और वो अटैच्ड बाथरूम में चला गया। जन्नत कुछ देर तक अपनी जगह खड़ी रही, फिर लबों पर मुस्कुराहट लिए अपना बकिया काम समेटने लगी। अगले दिन वो ऑफिस से जल्द ही वापस आ गया था। घर पहुंचकर मुलाजमों से पता चला उसकी जोजा मोहतरमा अपनी सास के साथ जैद के घर गई हुई थी। वो सीधा आफाक हाउस चला गया। वॉचमैन ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। जेबों में हाथ डाले वो बड़े ही लिए दिए से अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। सरसब्ज लॉन के वस्त में एक जगह स्टेज तैयार किया गया था। नेल्गू थीम में कुर्सियां मेजें सजाई गई थी। मेहमान खवातीन और उनके ढेर सारे बच्चे और हर तरफ शोर शराबा। बच्चे लॉन में भागते खेल रहे थे। सूजी मेहमान ने खुसूसी थी, इतनी लाडली कि तकरीबन हर बच्चा उसे गोद में लिए फिरता था। केक काटा जा चुका था, तोहफे वसूल हो चुके थे। अब यकीनन मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा था। उसकी नजर मिसेस शेराजी पर पड़ी। वो जैद की दादी के साथ महवे गुफ्तगू थी। वो आंखों में जरा सी बरहमी लिए अपनी बीवी को खोजने लगा और तब ही वो उसे नजर आ गया। आसमानी रंग के ढीले ढाले कपड़ों में मलबूस, बालों को पोनी बनाए वो ग्लास डोर से निकलकर मिसेस शेराजी की तरफ जा रही थी। जोया उसके पीछे पीछे थी। अक्सा मिसेस शेराजी के पास खड़े मजे से अपनी सीसीटीवी आंखों से यहाँ वहाँ देख रही थी कि यकायक नजर फारिस वजदान पर पड़ी। आपी, उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। जन्नत जोया के जूतों के तस्मे बांध रही थी। डर सी गई। क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? समझिए भूत ही देख लिया। नहीं, मेरा मतलब है वो वहां अपना बाजू सीधा करके इशारा किया। फारिस साहिब। जन्नत चौंक कर उठ खड़ी हुई, मुड़कर बैरूनी गेट की जानिब देखा और अगले ही लम्हे फारिस वजदान पर नजर पड़ते ही उसे खुशगवार हैरत ने घेर लिया। मैं आती हूँ कहकर वहां से निकल आई। फारिस वजदान के करीब पहुंचने तक आंखों की चमक, मुस्कुराहट और मुसर्रत भरे तमाम रंग छुपा लिए। अरे तुम यहाँ? गर्दन ऊंची किए जी भर कर हैरान हुई। हाँ, मैं यहाँ। हैरत है, तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगे। देख लो, उसने जताया, फिर हाथ से उसे दूर रहने का इशारा किया। अगर सोजी के साथ वक्त गुजार कर आ रही हो तो। मगर वो उसके बिल्कुल पास आ खड़ी हुई। दाहिने हाथ को सामने किया। दरमियान वाली उंगली में गुलाबी रंग की प्लास्टिक खिलौना अंगूठी सजी हुई थी। कैसी है? आंखों में बच्चों जैसा इश्तियाक लिए पूछा। बटन दबाओ तो लाइट भी जलती है। फारिस के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझसे कहा होता मैं ऐसी 1000 ला दे। मुझे एक ही चाहिए थी और वो जैद ने मुझे दे दी। इतरा कर कहा। तुम्हें अब अपने फियोंसी की सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए, उसने संजीदगी से कहा और वो हंस दी। आंखों में जिंदगी की रमक थी। चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। और ये खुशी किस लिए थी? उसकी आमद की वजह या फिर वेल ऑफ यू एक्सक्यूज मी, मेरी फियोंसी को पसंद नहीं। मैं इसके अलावा किसी से बात करूं? एक अदा से कहकर जाने को मुड़ी, मगर फारिस ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। तुम्हारे फियोंसी से तो मैं बाद में निमट लूंगा, लेकिन अगर आपको याद हो आज आपका अपॉइंटमेंट है। हाँ जी, याद है मुझे। मिसेस शेराजी ने उनकी जानिब देखा तो फारिस ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया।
उन्होंने इशारे से उसे जाने की इजाजत दी और मैंने ये भी कहा था डिनर बाहर करेंगे। वो उसे बाजू के हसार में लिए दाएं तरफ पिलर की ओट में हो गया था। तुम्हारी वजह से मैं ठीक से कुछ खा नहीं सकी। वो दीवार के साथ पुश्त टकाए खड़ी हो गई। सर उठा हुआ था, आंखें चमक रही थी। अभी अक्सा को बुलाकर पूछूं तो पता चले तुमने क्या कुछ खा लिया है। नहीं, पक्की बात है, सिर्फ जैद के साथ थोड़ा सा केक खाया है। और इस टिड्डे को जाने कैसे भनक पड़ी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां आ गया। जन्नत जी, फारिस और उसके दरमियान जबरदस्ती घुसकर खड़ा हो गया। तुम्हारा फ्योंसी अपनी फिटनेस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, उसने बरहमी का इजहार करके तबसरा किया। जन्नत ने उसे कोहनी दे मारी, आंखों ही आंखों में घूरी दी कि बच्चे के एहसासात का ख्याल कर लो। इन्होंने क्या कहा है अभी? जैद की शकी घूरियां कह रहे हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने ये कब कहा? वो भुना गया। जन्नत ने चेहरा मोड़कर उसे घूरा। तुम बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे ही बन जाते हो। तुम मुझे इल्जाम दे रही हो? इस पांडा को देखा है? हाथ से जैद की जानिब इशारा किया और जैद जो अपनी सालगिरह की मुनासबत से सचमुच में एक पांडा के गेटअप में था, खड़ा रह गया। फिर लड़ने मरने को आगे बढ़ा, मगर जन्नत ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया। छोड़ो इन्हें, ये तो हैं ही ऐसे। आप तो इतने क्यूट, इतने प्यारे लग रहे हो। और पांडा तो है ही मेरा फेवरेट। जैद के नन्हे से दिल को जरा तसल्ली हुई। नाक सुकेर कर फारिस को जलती सुलगती निगाहों से देखा। उसके बाबा भी वहीं आ गए। मुबारक हो आपको, फारिस ने हाथ मिलाते हुए कहा। जन्नत के मुमकिना सुसर कहका लगा कर हंसे। सच में तुमने सब मिस कर दिया, बहुत इंजॉय किया हमने। जन्नत जी, यहाँ से चलिए ना। जैद उसका हाथ पकड़कर खींचे जा रहा था। आपको अपने बेटे की सिक्योरिटी अब दुगनी कर देनी चाहिए, उसने मशवरा दिया। वो जोर से हंसे। दिल बड़ा करो यार, पुश्त थपथपा कर तसल्ली दी। अब बच्चों की खुशी थी, क्या कर सकते हैं। वो बड़े मूड में थे। आओ बैठो। नहीं, अब चलते हैं, हॉस्पिटल जाना है, 4 बजे का अपॉइंटमेंट है, फिर कभी वक्त निकाल कर आऊंगा। वो उनसे बात करते हुए बाहर चला गया। जन्नत मिसेस शेराजी के पास आ गई, अपना पर्स उठाया, मिसेस आफाक से इजाजत ली, जोया को प्यार किया और जैद से छुप छुपा कर बड़ी मुश्किल से बाहर आई तो फारिस गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। जैद उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। पहले तो उसने इस बात पर शोर मचाया कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं, कि जब जन्नत ने हॉस्पिटल जाने का बताया तो कुछ नरम पड़ा। मैं कल स्कूल के बाद आपसे मिलने आऊंगा, फूल भी लाऊंगा। स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त जमाए फारिस ने तप कर उसे देखा। जन्नत पैसेंजर सीट पर बैठी थी और वो दरवाजा बंद नहीं करने दे रहा था। हाँ ठीक है, जरूर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। कार्ड्स से खेलेंगे, ड्राइंग बनाएंगे और स्टोरीज भी पढ़ेंगे। वो उसे बहुत प्यार से बहला रही थी। और आप अपनी रिंग का बहुत ख्याल रखना, इनको बिल्कुल मत देना। इशारा फारिस की तरफ था। हाँ, इसका तो जैसे अब यही काम रह गया है, प्लास्टिक की अंगूठियां चोरी करना। वो जबरे भिंच कर बैठ गया। हाँ हाँ जरूर, किसी को नहीं दूंगी, संभाल कर रखूंगी। संभाल कर मत रखिएगा, आप पहनी रहें। अगर सेल खत्म हो जाएं तो मैं नए ला दूंगा। और अगर इन्होंने छोटे से हाथ से फारिस की तरफ इशारा किया, कुछ कहा ना तो मुझे बताइएगा। अक्सा जाने कहां से गुजर रही थी कि नजर गेट पर पड़ी और भागी भागी चली आई। जैद को पकड़कर पीछे हटाया। आपको आपकी मम्मा बुला रही हैं, जल्दी जाएं, जोया ने गिफ्ट खोल लिया है। अल्लाह हाफिज जन्नत जी। वो बड़े सोबर तरीके से हाथ हिलाकर पीछे हटा। अक्सा ने फौरन से आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और उसे अपने साथ ले गई। जन्नत बड़ी फुर्सत से उसकी तरफ मुड़ी। वो पेशानी पर बल डाले बैठा था। तो उसने कहा, तो ये मंगनी तोड़ दो। सीधा सीधा हुक्म सादर हुआ। वो हंसने लगी। तुम जेलस हो रहे हो? मैं भला क्यों जेलस होने लगा? वो चिढ़ गया। वही तो मैं पूछ रही हूँ, तुम एक बच्चे से क्यों जेलस हो रहे हो? उसके तासुरात से हिज उठाया। बच्चा? हरकतें देखी इसकी, इस उम्र में मंगनी का ख्वाब देख रहा है। देखिए मिस्टर फारिस, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई मेरे फ्योंसी के बारे में ऐसी बात करे। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारा दिल, गुर्दा, जान सब कुछ है वो। फारिस ने सुलग कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो आंखों में शरारत और लबों पर मुस्कुराहट लिए खिड़की से बाहर देखने लगी।
जाने दिल में सरूर की कैफियत क्यों थी? इसलिए कि फारिस उसके कहने पर वहां आ गया था, या फिर इसलिए कि उसके तासुरात भी ज़ैद से मुख्तलिफ ना थे? वो सोचकर मुस्कुराती रही। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद वो उसे रेस्टोरेंट ले आया था। मेन्यू कार्ड हाथ में लिए जन्नत ने अपनी मनपसंद डिशेस ऑर्डर की, और जब वो खाना खा रही थी तो वो उसे ही देख रहा था। हल्की फुल्की सी गुफ्तगू जारी थी। मिसेस शेराजी की बातें थी, सालगिरह पार्टी के इंतजामात पर तबसरा था। आइमा के यूनिवर्सिटी के चंद एक किस्से थे। वो सवाल करता जा रहा था और वो बोलती जा रही थी। मामूल के बरअक्स वो उसे बहुत खुशगवार मूड में लगी। खाने के बाद चाय मंगवाई गई और अब वो अपना कप हाथों में लिए बैठी थी, जब फारिस ने जेब से मखमली बॉक्स निकाल कर उसके आगे रखा। चाय का घूंट लेते वो यकायक रुक गई। कप उसने मेज पर रख दिया। ये मैंने लंदन में तुम्हारे लिए लिया था, फारिस ने कहा। उसे अंदाजा नहीं था वो इस गिफ्ट का अब क्या करने वाली थी। शायद वो गुजरी हुई चंद एक बातों का हवाला देकर गुस्सा उतारती या शायद इनकार कर देती, मगर उसने कुछ भी कहे बगैर मखमली डबिया खोली। अंदर सोने का खूबसूरत और नफीस सा ब्रेसलेट रखी थी। एक फूल जिसमें नन्हा सा दिल और ट्रायंगल बना था। फूल के दोनों सिरों पर गोल नगीने थे जो एक बारीक जंजीर से जुड़े हुए थे। आंखों में हल्की सी स्ताइश लिए उसने ब्रेसलेट उठा लिया। उसके तासुरात और रवैये से अपने अंदर सुकून की सी कैफियत महसूस करते हुए फारिस ने हाथ बढ़ाया। मैं आई, उसने जैसे इजाजत चाही। जन्नत ने इस बात में सर हिलाते हुए ब्रेसलेट उसके हवाले करके अपना बायां हाथ आगे कर दिया। एक नजर उसे देखते हुए ब्रेसलेट पहनाया। उसकी नाजुक कलाई पर वो जंजीर सज गई। थैंक्स, उसने कहा। तुम्हें पसंद आया? बहुत, लेकिन मेरे फियोंसी की अंगूठी ज्यादा प्यारी है, वो उसे चुराने को बोली। लेकिन मेरा गिफ्ट ज्यादा पायदार है। जैद ने मुझे ये रिंग बहुत दिल से दी है। जैद का दिल बहुत छोटा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। अब वो उसे ये नहीं कह सकती थी कि उसका दिल बड़ा नहीं था। कितना बड़ा है? वो मुस्कुरा कर रह गया। उसे खुशी थी कि जन्नत कमाल ने उसकी तरफ से दिया जाने वाला वो पहला तोहफा हक की तरह वसूल किया था। मामूल की तरह वो फारिस वजदान के साथ जिम में मौजूद थी। रोजमर्रा के तमाम वर्कआउट करने के बाद थकी हारी सी ट्रेडमिल पर खड़ी थी और अजलत में कदम उठाती बार बार टाइम देख रही थी। मुड़कर पीछे देखा तो फारिस मोबाइल फोन से लगाए बात करता हुआ नजर आया। पुश्त उसकी तरफ थी। निचला लब दांतों तले दबाए वो बटन ऑफ करके उतर गई। ख्याल था उसे पता नहीं चलेगा, मगर उसी वक्त कॉल से फारिग होते ही वो अचानक मुड़ा। फिर वॉच बैंड पर टाइम देखता उसके पास आ गया। 3 मिनट बाकी हैं। ना, नहीं, नहीं तो दोबारा करो और पूरे 15 मिनट तक। लहजे में जरा सी सख्ती थी। क्या? वो एकदम से चीखी। ये पहले दिन से तय था कि तुम जब भी कोई वर्कआउट बीच में छोड़ दोगी तुम्हें सजा मिलेगी। सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। वो एहतजाजन चलाई, मगर फारिस ने सुनी अनसुनी किए उसे दोबारा ट्रेडमिल पर खड़ा कर दिया। 15 मिनट तो जैसे उसके लिए 15 घंटे हो गए। सजा खत्म हो गई, मगर गुस्सा खत्म ना हुआ, नाराजगी खत्म ना हुई। वो ऑफिस चला गया तो सीधा मिसेस शेराजी के पास पहुंच गई। सिर्फ 3 मिनट पहले उतर गई थी मैं आंटी, सिर्फ 3 मिनट, और उसने 15 मिनट बढ़ा दिए। मिसेस शेराजी को खूब शिकायत लगाई, बताते हुए रोना भी आ रहा था। उन्होंने उसके सामने फोन करके फारिस की क्लास ली। मम्मी, वो वर्कआउट करते हुए बिल्कुल सीरियस नहीं होती। स्पीकर ऑन था तो आवाज उसने भी सुनी। सदमे से मुंह खुला। झूठ कह रहा है ये, तड़प कर दफा किया। मैं इतनी मेहनत करती हूँ। आंखें आंसुओं से भर गई। ये चाहती है सब ही वर्कआउट 1 मिनट में करके फारिग हो जाए। मम्मी, क्या ये पॉसिबल है? वो कह रहा था। अगर इससे 3 मिनट मिस हुए थे तो तुम्हें सिर्फ 3 ही मिनट ज्यादा लेने चाहिए थे। तुमने मेरी बहू को पूरे 30 मिनट ट्रेडमिल पर खड़े रखा। दिस इज नॉट फेयर फारिस। अब वो मोटे मोटे आंसू आंखों में भर लाई थी तो वो फौरन ही उसकी हमायत में उतरी। मम्मी, ये इसकी पनिशमेंट थी। अब क्या मैं इससे ये कहता कि 10 दफा अलिफ से बे लिख कर दिखाओ? वो उनकी डांट सुनकर नरमी से बात कर रहा था। वो लाजवाब हुई, फिर सर उठाकर उसे देखा। सर झुकाए वो आंसुओं को परे धकेल रही थी। उन्हें उस पर तरस आया। तुम दरगुजर कर देते बेटा। रोज करता हूँ मम्मी, आप इससे पूछिए। कल इसने 10 बार बाइप्स वर्कआउट करना था और इसने सिर्फ 6 बार किया। 2 मिनट की ब्रेक होती है, ये पूरे 5 मिनट ले लेती है। रोज मुझे उसे घर के किसी कोने से ढूंढ ढांड कर जिम ले जाना पड़ता है।
15 मिनट तो ऐसे ज़ाया हो जाते हैं, हालांकि ये अच्छी तरह से जानती है मेरा एक एक लम्हा कीमती है। इतनी सारी शिकायतें, जन्नत को सदमा हुआ, दुख हुआ, सर झुकता गया। मिसेस शेराजी स्पीकर ऑन करने पर पछता। खैर जो भी है, उन्होंने लहजा सख्त किया। तुम्हें मेरी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ वो खामोश हुआ। फारिस, ठीक है मेरी बात करवाएं इससे। आइंदा अलिफ बे लिखवा लिया करूंगा, फिर ना कहें 100 दफा क्यों लिखवा रहा हूँ। आंटी इसको देखिए, चिढ़कर सर उठाया। मिसेस शेराजी के लिए मुस्कुराहट दबाना मुश्किल हो गया। फारिस, मसनूई खुफकी से उसका नाम लिया। इससे कहिए मुझसे बात ना करे अब कभी। वो रोनी सूरत लिए उठकर बाहर निकल गई। मिसेस शेराजी उसे देख कर रह गई। अपने कमरे में जाकर उसने आंखें रगड़ कर साफ की, फिर कपड़े बदल कर बाहर आई और मिसेस शेराजी से इजाजत लेकर अक्सा के हमरा पार्क चली गई। फारिस से नाराज थी तो ना उससे बात कर रही थी, ना उसकी कॉल रिसीव कर रही थी। कुछ वक्त खुली फिजा में बिताने के बाद घर की तरफ रवाना हुई तो सड़क के ऐन किनारे उसकी गाड़ी आ रुकी। तुम्हारा तो एक एक लम्हा कीमती है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुलग कर पूछा। अक्सा पीछे थी। जंगला अबूर करके बाहर आई तो फारिस को देखकर हैरान हुई। उसके साहिब इस वक्त यहाँ? बैठो। फारिस ने उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला। अक्सा साथ थी तो वो जब्त करके बहुत खामोशी से बैठ गई। मूड बुरी तरह से ऑफ था। अपना ख्याल रखिएगा आपी, दरवाजा बंद करके अक्सा ने कहा। हाथ भी हिलाए, गुड लक और थम्स अप भी दिखाए। क्यों, तुम्हारी मालकन केटू सर करने जा रही है? खिड़की का शीशा नीचे करके फारिस ने झाड़ा। अक्सा बुरी तरह से गड़बड़ाई। ना ना नहीं, वो मैं, यहाँ से सीधा घर जाओ, हुक्म से कहा। वो मुअद्दब सी शरीफ बच्चों की तरह नाक की सीध में रोबोट की तरह चलती गई। भूले से भी मुड़कर ना देखा। फारिस ने गाड़ी रिवर्स की। जन्नत खिड़की की तरफ रुख किए चुप बैठी रही। वो भी खामोश रहा। अभी तक नाराज हो? मेन रोड पर गाड़ी डालते हुए नरमी से पूछा। बात मत करो मुझसे। मगर क्यों? वो धीरे से मुस्कुराया। तुमने आंटी को मेरी इतनी शिकायतें लगाई, असल गम ये था। तुम भी तो लगाती हो। घर भरा कर उसे देखा। मेरी बात अलग है। तुम्हारी बात क्यों अलग है? अपना मुंह बंद करके उसने अपना रुख खिड़की की तरफ कर लिया। अच्छा, आई एम सॉरी, आइंदा इनसे कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ इस बात पर नाराज हूँ कि तुमने मेरी शिकायतें लगाई? तो और किस बात पर नाराज हो? क्या तुम नहीं जानते? सदमे से दुख से पूछा। उसने नफी में सर हिलाया। तुमने मुझे 25 मिनट ट्रेडमिल पर वॉक करवाई। तुमने। फारिस ने गहरी सांस ली। अब मैं इसके लिए सॉरी नहीं कर सकता, साफ कह दिया। चंद लम्हों तक उसे सख्त नजरों से घूरती रही, फिर अपना रुख बदल गई। क्या बहुत थक गई थी? खामोशी। ठीक है, इसके लिए भी सॉरी, लेकिन वादा करो आइंदा कोई भी मिनट मिस नहीं करोगी। मुकम्मल खामोशी। पिज्जा हट चलें? मुड़कर पूछा, लेकिन वो तो जैसे वहां थी ही नहीं। लॉन्ग ड्राइव के बारे में क्या ख्याल है? खूब बातें करेंगे। उसका सर खिड़की की तरफ ही रहा। वो उसे राज के नजरअंदाज कर रही। आइसक्रीम खाओगी? खामोशी। वो मेन रोड पर गाड़ी डाले हुए था। गहरी सांस खींचकर मोड़ काटने लगा तो आवाज आई। खिला दो। वैसे ही रूठी हुई सी आवाज, उखड़ा हुआ सा अंदाज। वो मुस्कुराहट जब्त कर गया। जो आपका हुक्म, लेकिन गाड़ी में ही खाएंगे, उसने कह दिया। फारिस ने सर हिलाया। गाड़ी पार्क करके वो आइसक्रीम लेने चला गया। खिड़की की तरह रुख किया और आइसक्रीम पार्लर में दाखिल होता देखकर, लेकिन गाड़ी में ही खाएंगे, उसने कह दिया। फारिस ने सर हिलाया। गाड़ी पार्क करके वो आइसक्रीम लेने चला गया। खिड़की की तरफ रुख किया। उसे आइसक्रीम पार्लर में दाखिल होता देख सकती थी। ऐसे ही ख्यालों में गुम उसकी बातें सोच रही थी जब सामने एक सफेद गाड़ी आ रुकी। दरवाजा खोलकर सफेद ट्राउजर पर सुर्ख रंग की शर्ट जेब तन किए अदीना जुबैर बाहर निकली। ग्लासेस अपने बालों में अटकाते हुए पर्स कंधे पर डाला और मोबाइल कान से लगाए, हंसते हुए अजलत में कदम उठाती अंदर दाखिल हो। जन्नत की सांसें थम गई, दिल रुक गया। एकदम से खुद पर तारी उस जमूत को तोड़ते हुए वो दरवाजा खोलकर बाहर निकली। हरकत गैर इरादी थी। उसका रुख ग्लास डोर की तरफ था। वो जैसे अदीना जुबैर से पहले फारिस वजदान तक पहुंच जाना चाहती थी। शीशे की दीवारों से अंदर का मंजर नुमाया था। उसके कदम जमीन पर जम गए, निगाहें एक ही मुकाम पर। फारिस वजदान के साथ अदीना जुबैर मौजूद थी। उसकी नफीस उंगलियों की गिरफ्त फारिस के बाजू पर, उसकी दिलफरेब निगाहें फारिस के चेहरे पर थी। मंजर वाज़िया होकर अगले ही पल धुंधला गया। वो एकदम से पीछे हटी।
खुद पर काबू पाती वापस पलटी, दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई, मुट्ठियां सख्ती से भींच गई। माहीन और बुरहान, जहन के पर्दे पर कई मंजर लहरा, कई बातें याद आई, कई खदशे, कई वसवसे, कई खौफ से लिपटे वहमे उसके अंदर समा गए। वो अंदर तक हिल गई। मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं है। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की। 3 से 5 मिनट का दौरानिया जो कि बढ़ता गया। 7 मिनट, 9 मिनट, 15 मिनट। अदीना जुबैर की गाड़ी सामने ही खड़ी रही। फारिस वजदान बाहर ना आया। उसका दम घुटने लगा। उसे वहशत होने लगी। यकायक शीशे पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर सर उठाया। फारिस ने शीशा खोलने का इशारा किया था। उसने कपकपाती उंगलियों से दरवाजा खोल दिया। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, कहकर दोनों कप उसकी तरफ बढ़ाए, जो बगैर किसी तरद्दुद के उसने ले लिए। लम्हे भर के लिए उसका चेहरा देखकर वो चौंका था, फिर घूमकर सीट पर आ बैठा। तुम्हें क्या हुआ? पूछे बिना ना रह सका। कुछ नहीं। कवर उतार कर उसने चम्मच निकाल लिया। तबीयत ठीक है? हाँ, वो कहकर आइसक्रीम खाने लगी। उसने चंद लम्हों तक उसे देखा, फिर अपनी आइसक्रीम गिलास स्टैंड पर रख दी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो छोटे छोटे चम्मच खुद भी ले रहा था। गाड़ी में पहले सिर्फ खामोशी थी, मगर अब तो जैसे सन्नाटा सा उतर आया था। घर चले? वो कह रही थी। फारिस ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आज के दिन के लिए उसके पास बहुत सारे प्लान्स थे, मगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अब कह रही थी। उसने इस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। बात सुन रशीदा, शाम में फुर्सत मिलते ही रूबी उसके घर पहुंच गई थी। 2 बार खत लिखकर उसके जरिए भिजवा चुकी थी और इन 2 माह में ताहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फोन नंबर कंपनी का था, सो बच्चे के चचा से बात नहीं हो सकती थी। अब उसने तीसरी बार खत लिखा था। काफी सारी सूरतें, दुआएं पढ़कर फूंका, ये खत किसी तरह बच्चे के चचा को मिल जाए, मगर रशीदा ने अब के साफ मना कर दिया। ना भाई ना, उसने हाथ उठाया। अपने घर वाले से कुछ नहीं खानी मुझे। 2 बार वो तेरा खत दे आया है, अब कहूंगी तो चुटिया से पकड़ लेगा। बस ये आखिरी बार, देख तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रशीदा ने जिच होकर उसे देख। तू क्या पराए फड्डों में टांग अड़ाई जा रही है? अकल मानती है कि उसके चचा को बिल्कुल उसकी खबर नहीं होगी। रूबी लाजवाब हो गई। हो सकता है उसे तेरे खत मिल रहे हों और वो भी ना आना चाहता हो। मैं मान ही नहीं सकती। मेरा खत पढ़कर किसी को एहसास नहीं होगा। वो रूहान सी। रशीदा ने गहरी सांस लेकर कहा, ये जिनके घर में ये बच्चा रो रहा है, ये उसके रिश्तेदार हैं। ये जो पैसे खा रहा है, ये उसका सगा मामू है, जिसने यहाँ उसे छोड़ रखा है। वो उसकी सगी माँ है, और जो पैसे भेजकर समझ रहा है जिम्मेदारी पूरी कर दी, उसका सगा चचा है। अब तुम बता मुझे, किस किस से लड़ेगी? किस किस में एहसास जगाएगी? जब माँ ही बेहिस है तो और कौन एहसास करेगा? मैं कर रही हूँ ना एहसास। और यहाँ रशीदा लाजवाब हो गई। वो इतना छोटा सा है रशीदा, मेरा तो उसे देखकर कलेजा मुंह को आता है। उसको तो कुछ पता भी नहीं उसके साथ कितना जुल्म हो रहा है। नौकरों से भी बदतर जिंदगी है उसकी। रशीदा ठंडी आब भर कर रह गई। उस लड़की को समझाना फजूल था। खत देकर वो घर आ गई। जहन मुख्तलिफ ख्यालात की अमाजगा बना हुआ था। 3 खत, 3 कोशिशें। अब के उसने सोच लिया, जवाब ना मिला तो वो बच्चे को उठाए खुद इस्लामाबाद उसके चचा के पास चली जाएगी। मगर ये मंसूबा ज्यादा खतरनाक था। नाकामी के चांसेस ज्यादा थे। बच्चे के साथ इस घर से गायब होने पर ज्यादा मुश्किलात पेश आ सकती थी। अगवा और चोरी का इल्जाम लग सकता था। उसके माँ के लिए मसला हो सकता था। और फिर इस बात की भी कोई जमानत ना थी कि चचा बच्चे को कबूल कर लेगा। ऐन मुमकिन है उसे वापस यही भिजवाए। क्या खबर रशीदा, सच ही कहती हो? चचा ने जानबूझकर इस मासूम बच्चे को यहाँ छोड़ रखा हो। जोश से सोचते सोचते वो होश में आ गई। अल्लाह, सोना कोई तो हल हो। बस किसी तरह ये खत मिल जाए, इस घर के मालिक को मिल जाए, मालकन को मिल जाए, किसी को तो मिल जाए, कोई तो इसके लिए आ जाए। उसने सदके दिल से दुआ की थी और उसकी ये दुआ कबूल कर ली गई थी। सर्द हवा का झोंका सरासर गुजरा था। वो दरख्तों की छांव में बेंच पर बैठी थी। सामने ही ट्रैक पर उसे हर उम्र के लोग नजर आ रहे थे। अक्सा भी यहीं कहीं टहल रही थी। गहरी सांस लेकर उसने सर उठाया। मोबाइल पर नोटिफिकेशन मौसूल हुआ तो उसने खोल कर देखा। अपनी ऑफिस चेयर पर विराजमान होकर फारिस ने अपनी तस्वीर भेजी थी।
चेहरा मुतबस्सम था। जन्नत के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो पूछ रहा था। कुछ बेहतर हूँ, अक्सा के साथ पार्क में हूँ, उसने जवाब दिया। तुम्हें आराम करना चाहिए था, फौरन ही जवाब आया। इससे पहले कि वो कुछ लिखती, उसके और धूप के दरमियान जैसे एक साया सा आ गया। उसने बेसाख्ता सर उठाया और अगले ही पल अपनी जगह थम गई। मोबाइल स्क्रीन पर फारिस के मैसेज अभी भी आ रहे थे। वो स्क्रीन पर नहीं देख रही थी, मगर मैसेज देखे जा चुके थे। आसपास दूर दूर तक हर एक शय पर जैसे एक जमूद सा तारी हुआ था। अदीना जुबैर उसके सामने खड़ी थी, ब्रांडेड ट्रैक सूट में, मलबूस ऊंची पोनी टेल बनाए मुतनासिब सरापे में। हर एक की मरकज की निगाह बनती अदीना जुबैर उसके सामने थी। पानी की बोतल से चंद घूंट भरते हुए उसने छोटे रुमाल से अपना पसीना साफ किया और फिर एक दिल फरेब मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसके पास आ गई। सर ता पैर एक जायजे ही में वो उसके वजूद में पिनपती एक नई जिंदगी का अंदाजा लगा चुकी थी। मगर उसकी आंखों की वो अलवाही और फातिहाना सी चमक एक लम्हे के लिए भी मांद नहीं पड़ी थी। एक तज़हीक अमेज नजर उस पर डालते हुए उसने रुमाल से अपनी गर्दन को थपथपाया था। सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी? मैं भी कहूँ, फारिस हमारी शादी को डिले क्यों कर रहा है? करीब जवार में धमाका कैसे होता है और फिर धमाके से वजूद पर परखच्चे कैसे उड़ते हैं, ये जन्नत कमाल ने उस लम्हे जाना था। उसने मुझसे कहा कुछ महीने इंतजार कर लो, मगर वजह नहीं बताई। तो वजह ये है, हाथ से इशारा किया, फिर इस्तेहज़ाया अंदाज में हंसी। क्या तुम्हें लगता है उसके बच्चे की माँ बनकर तुम उसके दिल तक रसाई हासिल कर सकोगी, या फिर हम दोनों के दरमियान आ सकोगी? जन्नत का दिल शिद्दत से धड़क उठा, सांसें भारी होने लगी। वो आग थी जो लफ्जों की सूरत वजूद में उतरी और उसे राख करने लगी थी। यू नो व्हाट? उसकी तरफ झुककर उसने जन्नत के दुपट्टे पर लगी बेल की उंगलियों से छुआ। तुम्हारे ख्वाबों का महल तुम्हारी औकात से बहुत ऊंचा है। सिर्फ मेरे एक कदम उठाने की देर है और सब चिकनाचूर हो जाएगा। फातिहाना मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर बोली। फारिस भी मेरा है, घर भी मेरा है और जगह भी मेरी है। लहजे में सख्ती, आंखों में उदावत लिए खतरनाक तेवरों के साथ अपनी पोजीशन, अपने इरादे उसने जन्नत कमाल पर वाजिया कर दिए। सर झटक कर जॉगिंग ट्रैक की तरफ जाने लगी तो पत्थर का मुजस्मा होती जन्नत कमाल खुद को तोड़ कर उठी। उसने अदीना जुबैर का बाजू सख्ती से पकड़कर उसे झटके से रोका था। हाउ डेयर यू? अपना बाजू छुड़ाकर उसने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा। जन्नत की आंखों में खून उतरा था, तासुरात पथरीले हो रहे थे। आइंदा मेरे शोहर का नाम इस तरह से लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदीना जुबैर लम्हे भर के लिए सदमे से गुंग हुई। वजूद शोलों की जद में आ गया। अंदर बाहर हर तरफ आग जलने लगी। इस आग की जद में जन्नत भी आने लगी। तुम्हारा शोहर? किसे बेवकूफ बना रही हो? लहजे में आग की चिंगारी लिए इंतहाई हकार से पूछा। जानती हो मैं कौन हूँ? अदीना जुबैर हूँ, फारिस वजदान की पहली और आखिरी मोहब्बत। उसने मेरी जगह कभी भी किसी को नहीं दी। सिर्फ इस बच्चे की वजह से वो तुम्हें अपने साथ रखे हुए है, वरना तुम्हें तो वो कब का घर से निकाल चुका होता। उसकी जुबान जहर उगल रही थी। चंद दिन लंदन में क्या गुजार लिए, तुम्हारा तो दिमाग ही साथ में आसमान पर पहुंच गया। समझ रही हो तुमने उसे पा लिया? जन्नत की आंखों में नमी उतर, कदम बेजान होने लगे। प्रेग्नेंट हो इसलिए अभी तक इस घर में हो, वरना अब तक वो तुमसे अपनी जान छुड़ा चुका होता। सख्ती से कहकर उसकी आंखों में देखा, फिर इंतहाई गुस्से से उसे झटका। हद में रहो, उंगली उठाकर वार्न किया। जो मेरा है वो मेरा ही है। तुम मेरे दरमियान आई तो तुम ही हमारे दरमियान से जाओगी। खतरनाक तेवरों के साथ कहकर वो जाने के लिए मुड़ गई। जन्नत लड़खड़ा कर पीछे हुई, बेंच का सहारा लेकर बैठ गई। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। पलकें झुकाकर सामने देखा। अदीना जुबैर ने उसकी तरफ नहीं देखा था। वो भागते हुए नजरों से ओझल हो चुकी थी, मगर उसे वो अपने आसपास, अपनी जिंदगी में, अपने घर में, हत्ता के बेडरूम में भी नजर आ रही थी। ये लें आपका जूस। अक्सा ने उसकी तरफ स्ट्रॉबेरी जूस का गिलास बढ़ाया और अगले ही पल उसके तासुरात देखकर परेशान हो गई। आपी, आप ठीक हैं? उसने पूछा, मगर जन्नत ने नहीं सुना।
وہ سر اٹھائے گہری سانسیں لے رہی تھی، موبائل پہلو میں پڑا تھا، میسیجز ابھی بھی آ رہے تھے۔ اس نے موبائل اٹھا لیا۔ میں بس ابھی آفس سے نکلنے لگا ہوں، گھر چلی جاؤ تو بتا دینا، ورنہ میں تمہیں پارک سے پک کر لیتا ہوں۔ کہیں جانا ہے؟ اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا۔ پارک میں ہوں، اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے میسج ٹائپ کیا۔ افسا نیچے بیٹھ گئی۔ گھر چلیں آپی؟ مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ 15 منٹ بعد فارس نے اسے پارک سے ہی پک کر لیا۔ اپنے تاثرات پر قابو پائے، وہ خود کو کسی حد تک سنبھالے ہوئے تھی، اپنی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پیچھے دھکیلتی سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اس سے باتیں کر رہا تھا، اسے سن رہی تھی مگر سمجھ نہیں رہی تھی، کچھ کہہ بھی نہیں رہی۔ وہ اس کی خاموشی کو طبیعت خرابی پہ محمول کر رہا تھا۔ کل سے اس کی طبیعت نڈھال تھی، وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہا تھا۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک بنگلہ نما گھر کے پورچ میں گاڑی روک چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ ذہن کہیں اور تھا، سوچ کہیں اور تھی، شاید وہ اسے کسی سے ملوانے لایا تھا۔ اس نے خالی الذہنی کے عالم میں سوچا۔ لون سے گزر کر صدر دروازے تک بالکل خاموشی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک کھوئی سی نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ کیسا ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ یہ گھر ٹھیک ہے؟ اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں۔ فارس کو لگا وہ اس کے ساتھ یہاں کہیں نہیں ہے، صرف ٹھیک ہے۔ اور کیا کہوں؟ سر اٹھا کر پوچھا۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے پسند آیا یا نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں اپنے لائر سے بات کروں گا، ملکیت کے ڈاکومنٹس تیار ہوں گے، یہ گھر تمہارے نام ہو جائے گا۔ صدمے سے گنگ اس نے فارس کو دیکھا، سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فارس یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں کہہ رہا تھا؟ قدم جکڑے گئے، اندر تک سب ہل گیا۔ تمہارے لیے ڈرائیور میٹ کا بھی انتظام ہو جائے گا، ہر مہینے تمہارے اکاؤنٹ میں رقم بھی ٹرانسفر کر دیا کروں گا۔ وہ جیسے انگلی پر سب گن کر واضح کر رہا تھا، اور جنت صدمے سے پتھر ہوئی کھڑی تھی۔ کیفیت ایسی تھی جیسے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ اس کے حواس شل، ذہن معاف اور قدم بے جان ہونے لگے تھے۔ کیا ادینہ زبیر درست کہہ رہی تھی؟ فارس وجدان اسے بے وقوف بنا رہا تھا، اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ فارس بھی میرا ہے، گھر بھی میرا ہے، اور جگہ بھی میری ہے۔ فارس اب کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ اسے سن نہیں رہی تھی۔ وہ جیسے اپنے آپ میں، اپنے طوفانوں میں گم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو چکے تھے، اس کے تاثرات میں ایک دم سے ویرانی اتر آئی تھی، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، اس کی آواز کپ کپائی، چہرہ مکمل سفید پڑ چکا تھا۔ جنت پلیز، مجھے گھر جانا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مجھے آنٹی کے پاس جانا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میری طرف دیکھو۔ کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا بھر گیا، ٹانگیں بے جان ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اور پھر ہاسپٹل پہنچنے تک اسے سب یاد تھا۔ اس کے بعد جیسے سب مبہم، سب دھندلا ہو گیا تھا۔ اسے جب ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی تب بھی وہ روتے ہوئے مسز شیرازی کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی، اور پھر جیسے ایک دم سے سب ساکن ہو گیا، درد بھی، اذیت بھی، وحشت بھی اور خوف بھی۔ وہ کتنی دیر تک دواؤں کے زیر اثر رہی اسے اندازہ نہیں تھا، مگر جب ہوش آیا تو سر تب بھی بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ کمرے کی مدھم سی روشنی بھی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی، اور جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو فارس نے فوراً سے ہاتھ پکڑ کر روک دیا، اسے سہارا دے کر سر کے نیچے تکیے رکھے تاکہ وہ نیم دراز پوزیشن میں آ سکے۔ خود اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ مدھم سی زرقا روشنی میں وہ اس کی آنکھوں میں تشویش دیکھ سکتی تھی۔ اسے پورا واقعہ یاد آیا تو آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اذیت میں گھر گئی، پھر سے رو پڑی۔ صبح تک تو تم بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ از حد پریشان اور فکر مند لگ رہا تھا، مگر اب وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ اعصاب منتشر تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر، اذیت انگ انگ سے عیاں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کس بات کا اتنا سٹریس لے رہی ہو؟ نرمی سے گال پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھایا۔ یہ چہرہ سفید آنسوؤں سے لبریز، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ادینہ، اس کے لب ہلے۔ اس نے کہا، تم اس کے ساتھ اپنی شادی کو اس لیے ڈیلے کر رہے ہو کیونکہ میں پریگننٹ ہوں، جبکہ تم مجھے کہہ رہے تھے تمہاری زندگی میں کوئی عورت نہیں۔ تم نے جھوٹ کہا۔ تم، اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔
آنسو بہتے جا رہے تھے۔ فارس وجدان لمحے بھر کے لیے جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ میں نے تمہیں اجازت دی تھی، کیا نہیں دی تھی؟ روتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا تھا جب چاہو جسے چاہو اپنی زندگی میں شامل کر لو، میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی، کیا نہیں کہا تھا؟ پھر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ مجھے خواب کیوں دکھائے؟ مجھ سے یہ کیوں کہا تمہاری زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ وہ شدت سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔